Hello, class ninth. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today, we are going to start the new stanza, Mahendra Wood, okay, from the Iswaran, the storyteller. ध्यान से पढ़ेंगे इसको, देखेंगे क्या कहता है. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some people carrying some prepared food with him. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over, and and his head muttering a prayer all the while. It would be lunch time by then. After eating, he would read. He would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall. Okay? कहता है सुबह महेंद्र जल्दी उठ जाता था तथा नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाता था और अपने साथ तैयार किया हुआ भोजन ले जाता. ओके? तब ईश्वरन अपने स्थान को साफ करता, कपड़े धोता तथा आराम से स्नान करता. वह बहुत सी पानी से भरी बाल्टियां अपने सिर पर डालता और साथ साथ बुदबुदाकर प्रार्थना भी करता. तब दोपहर के भोजन का समय हो जाता. भोजन के पश्चात यानी भोजन के बाद थोड़ी देर वह अध्ययन करता, फिर थोड़ी देर झपकी लेता. उसकी अध्ययन की प्रसिद्ध तमिल पुस्तक की होती जो उत्तेजनापूर्ण होती तथा जिसके सैकड़ों पृष्ठ हो सकते थे. इसका काल्पनिक वर्णन और वर्णनात्मक उत्साह ईश्वरन को बंधुत्व की भावना से भर देते. नाउ इन द नेक्स्ट स्टंजा फ्रॉम हियर his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. With its dry branches spread out, Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. Okay? कहता है कि वह जिन तमिल लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करता उनसे उसका अपना संवर्धन होता. जब वह किसी छोटी सी घटना का भी अध्ययन करता तो वह वर्णन आश्चर्यचकित और अद्भुत सा होता. उदाहरण के तौर पर अगर उसे यह बताना होता कि बड़े मार्ग पर उसने उखड़ा हुआ पेड़ देखा तो वह अपने भौहों को उसी रूप में तथा हाथों को घुमाते हुए प्रदर्शित करता और कहता, रास्ता सुनसान था और मैं एकदम अकेला. तब मैंने घनी झाड़ियों जैसा अति वृहद, असाधारण, बेढंगा, चौपाया जानवर सड़क के किनारे देखा. मैंने थोड़ा वापस मुड़कर जाने का विचार किया, किंतु जैसे ही मैं उसके पास गया देखा कि यह तो एक सूखा पेड़ गिरा हुआ है. पेड़ गिरा हुआ पेड़ है जिसकी शाखाएं बिखरी हुई है. महेंद्र अपने तंबू में कपड़े वाली कुर्सी पर सीधा बैठ जाता और बिना किसी टीका टिप्पणी के ईश्वर की कहानियां सुनता. ठीक है, आगे देखेंगे. The place I come from are famous for timber. Iswaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts
When they turn wild, even the most experienced Mahat is not able to control them. After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. ईश्वरन अपनी कहानी कहना आरंभ करता है। मैं जिस जगह से आया हूँ वह लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत ही कीमती लकड़ी उपलब्ध है। लकड़ी के लट्ठों को ट्रकों में हथियारों द्वारा रखा जाता है। उन्हें भरपेट भोजन दिया जाता है। वह जब हिंसक हो जाते हैं तो बहुत अनुभवी महावत भी उन्हें वश में नहीं कर सकते। इस प्रस्तावना के साथ ईश्वरन अपनी लघु कथा को आगे बढ़ाता है जिसमें हाथी भी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वन डे से। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. देखिए यहाँ एक दिन लकड़ी के गोदाम से एक हाथी भाग निकला और यहाँ वहाँ घूमने लगा, झाड़ियों को रो देने लगा, जंगल के रेंगने वाले जानवरों को मारने लगा तथा अपनी इच्छानुसार शाखाओं को तोड़ने लगा। आपको मालूम है क्या श्रीमान, जब हाथी पागल हो जाता है तब वह कैसे व्यवहार करता है? ईश्वरन अपनी कही गई कहानी के बीच आश्चर्यजनक रूप में फर्श पर खड़ा हो जाता है तथा हाथी से प्रतिस्पर्धा करते हुए छलांग लगाता। ठीक है, तो यहाँ से द एलिफेंट रिच द आउट स्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।